Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Okay, I hope you are doing well, and so are your loved ones in your family. Hoping everything is fit and fine. Let's see, आज हमारा अकाउंटेंसी का लेक्चर आपको और कितना फिट एंड फाइन करेगा. सो मेरे पीछे चैप्टर का नाम हमेशा की तरह होता ही है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. नाउ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप is already covered up. We are doing partnership final accounts, which is not a chutki baja ke chapter. Okay, so there is ample amount of practice. We are just at the very beginning for the questions that have been asked in the Maharashtra government textbook. आज का क्वेश्चन कुछ इस तरह है. सो राइट अबाउट ऑलवेज द क्वेश्चन नंबर एंड मौजूदा टेक्स्ट बुक में उसका पेज नंबर, चैप्टर का जो ये लेक्चर है उसका जो टाइटल है उसमें हमेशा मेंशन रहेगा. सुचेता एंड गायत्री, हियर गोस, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. डिफरेंट, लिटिल डिफरेंट. ओके, थोड़ा इस पे मैं जोर डालूँ. सबसे पहली बात, वेलकम सुचेता एंड गायत्री. तो ओके, थोड़ा पावर पफ एलिमेंट है आज. ओके, अगेन देर आर नो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर इमेज. अरे सर ये सुचेता है, ये तो मेरे को पता ही नहीं था. ओके, आई एम जस्ट पुटिंग अ कैरेक्टर सो दैट उसका एक, रेदर देन हैविंग अ ब्लैंक बोर्ड. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट उनकी शक्ल या उनकी अकल या वो दिखते कैसे हैं, उनका रेशो. डाउन 3:2. व्हाट डू यू मीन बाय 3:2? 3 रुपया 2 रुपया, 3 रुपया 2 रुपया. सुचेता और गायत्री के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें उन्होंने ये अग्री किया है कि जब प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रॉफिट होगा या लॉस, 3 रुपया जाएगा सुचेता के पास और गायत्री के पास 2 रुपया. नाउ अगेन ओके, हंसना मत. अरे सर क्या 3 रुपया 2 रुपया के लिए ये लोग बिजनेस करेंगे? नहीं, ये सिंपल भाषा में है. ओके, अगर एक पापा अपने 2 बेटों को ओके कुछ तो रीज़न की वजह से कहे, मेरे प्रॉपर्टी का जो 2 रुपया है बड़े बेटे को मिलेगा, 1 रुपया है छोटे बेटे को मिलेगा, तो वो लिटरली 2 रुपया अपने प्रॉपर्टी का बड़े बेटे को नहीं दे रहा. वो ये बताने की कोशिश कर रहा है एक रेशियो के स्टाइल में 2:1 कि मेरे बड़े बेटे को दुगना मिलेगा और मेरे छोटे बेटे को दुगना नहीं, उससे आधा मिलेगा.
तो आई रिपीट, उनका जो भी डिसीजन था, ओके, उन्होंने जिसको जितना लायक समझा। सिमिलरली तो वो लिटरली 2-1 रुपया नहीं होता, दुगना और आधा होता है। उसी तरह यहाँ पे लिटरली 3-2 रुपीज़ नहीं होता, इट इज़ 3 गुना 2 गुना, समथिंग लाइक दिस। टोटल क्या होता है 5। तो इसमें से जो रेशो निकलता है इस 3/5, 2/5। अभी नहीं, एट द एंड ऑफ द प्रॉब्लम काम आएगा, अभी तो जस्ट आई हैड टू टेल यू। रीडिंग दिस क्वेश्चन अहेड, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस and additional information you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019। सेम स्टोरी, इस कहानी में कुछ नया पात्र नहीं है। एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। हाँ, मे बी दिस पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस लुक्स लिटिल डिफरेंट। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि ये ट्रायल बैलेंस में देर इज वन लिस्ट and that list sometimes is a debit item and sometimes is a credit item। इसको कहते हैं जर्नल स्टाइल ट्रायल बैलेंस। अगर इसके पहले के ट्रायल बैलेंस जो थे वो लेजर स्टाइल थे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है फॉर सम स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। इसके अंदर भी डेबिट है, डेबिट में क्या है, दैट लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेबिट, एसेट, एक्सपेंस। क्रेडिट में क्या आएगा, थोड़ा कम आइटम है, लाइबिलिटी, इनकम। एग्जाम्पल आगे करते हैं डिस्कस, यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो, थोड़ा और बेटर आइडिया आ जाएगा। परचेसेस एंड सेल्स दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में ही होता है क्योंकि वहां पे गोडाउन होता है, सो ट्रेडिंग इज द मार्किंग। नेक्स्ट, वर्क्स मैनेजर्स सैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजर सैलरी कहे, मैनेजर तो ऑफिस में काम करता है, वर्क्स का मतलब फैक्ट्री होता है, मतलब आई कैन से वर्क्स इक्वल्स टू फैक्ट्री। तो ऐसे इसको बोलो, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, तो फैक्ट्री का खर्चा रहेगा। यस, देयरफॉर द मार्किंग ट्रेडिंग। कैपिटल, वो तो दोनों हम लोग पार्टनर के अकाउंट में लिखेंगे, वी कॉल इट पी कैप, पी कैप। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते क्योंकि वो पहले से ही वहां पे होता है, ट्रेडिंग। डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन वन लाइन, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि एक नंबर डेबिट में है और दूसरा नंबर क्रेडिट में है। डेबिट में डेटर आता है क्योंकि वो एसेट है, और क्रेडिट में लाइबिलिटी क्योंकि, सो आई रिपीट, वो क्रेडिटर है। सो द मार्किंग फॉर डेटर एंड क्रेडिटर इज एसेट एंड लाइबिलिटी, डेबिट डेटर, क्रेडिटर क्रेडिट। वेजेस एंड सैलरीज अगेन लिटिल कंफ्यूजिंग, दोनों नहीं है, दे हैव ओनली गिवन 4000। जो फर्स्ट वर्ड आया उस अकाउंट में लिख लो, जो फर्स्ट वर्ड आया उस अकाउंट में लिख लो। तो फर्स्ट वर्ड तो वेजेस आया, therefore trading account। बिल रिसीवेबल एसेट, बिल पेएबल लाइबिलिटी। पास्ट 1-2 लेक्चर्स हमने काफ़ी डिस्कस किया है बिल के बारे में, खास करके बिल रिसीवेबल के बारे में। हाँ, टुडे ऑल्सो सेम एडजस्टमेंट इज देयर, सो दैट इज द रीजन आई एम डूइंग माई बेस्ट के व्हेन आई डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम देयर इज लिटिल बिट समथिंग कनेक्टेड टू द प्रीवियस वन, तो उसी बहाने से रिविजन भी हो जाता है एटलीस्ट उस एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट, डिस्काउंट, माइंड का काम, P&L। हाँ, बट डेबिट और क्रेडिट, वेल लुक एट दैट लाइन, इट इज ऑन द क्रेडिट साइड 400, तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा। हाँ, मोटिव पावर, ये क्या है, मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, मशीन इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है ना नॉर्मली। ओके, यस, ये पॉसिबल है कि वो पेट्रोल इंजन, पेट्रोल पे चले या डीजल पे चले या केरोसिन पे चले या कोयला पे चले। ओके, बिकॉज वी इवन हैव ट्रेन्स जो जिनका इंजन कोल के से जो जनरेट होता है ना, उसमें से। ओके, एक बड़ी फेमस हिंदी मूवी है शोले करके, यूट्यूब पे देख लेना, अवेलेबल होगा। ओके, उसके अंदर देयर इज अ वेरी लॉन्ग सीक्वेंस एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मूवी वेयर यू हैव अ कोल इंजन ट्रेन बीइंग यूज, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, दिस मीन्स व्हाट, मोटिव पावर, मशीन जो पावर यूज करता है,
तो उसका बिल तो फैक्ट्री में आएगा। हाँ, देयरफॉर ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टम ड्यूटी यू पे, तब जाके आपका रॉ मटेरियल कस्टम एयरपोर्ट से क्लियर हो जाएगा और वो बाहर निकलेगा, एयरपोर्ट के गोडाउन से बाहर निकलेगा और आपके गोडाउन तक आएगा। तो कस्टम ड्यूटी आप जब तक ना भरो, आपको आपका माल, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। तो इट इज़ बिफोर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये फैक्ट्री के साथ, ये गोडाउन के साथ जुड़ा हुआ है ट्रेडिंग। नेक्स्ट, इंटरेस्ट is a mind calculation, P&L, 1%, 2%, 3%. Unproductive wages. Again, these are very confusing things. Sir, above it was wages and salaries. You said जो first word आया उसके हिसाब से जाओ, तो ट्रेडिंग लिखा हमने। तो ये क्या है? Unproductive wages. Unproductive मतलब कुछ नहीं बनाया। Productive wages का मतलब कुछ बनाया। क्या बनाया? एक प्रोडक्ट बनाया। Now this is a product. Yeah, just a minute, I'm showing it to you. ओके, एंड देर इज सम धागा कनेक्टेड टू इट, ताकि ये लटकाया जा सके। ओके, तो आई रिपीट, ये जो धागे का काम है ये कोई ना कोई इंसान करता रहेगा। ओके, बिकॉज इट हैज़ टू बी पुट, ओके, इट्स कॉल्ड एज अ लैंडयार्ड, इट हैज़ टू पुट इन दिस होल एंड रिमूव्ड। ओके, सो द पर्सन हु डज दिस, वो ये प्रोडक्ट को, ओके, ये जो ईयरफोन्स होते हैं ना, इसको बनाने में हेल्प कर रहा है। सो उसका जो पगार है वो प्रोडक्टिव है। आई रिपीट, उसका जो पगार है वो प्रोडक्टिव है। फिर इसको एक डब्बे में डाल देते हैं। ओके, फिर वो डब्बे को उठाकर कहाँ पर रखना पड़ता है। ओके, तो उससे प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं होती है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? यू पे पीपल। चलो एक सीन ऐसा सोचो जहाँ पे आप चाइनीज खाने को गए, ओके, रास्ते पे कोई स्टॉल पे, अभी मत करना वो, ओके, इट्स नॉट वेरी सेफ, बट जनरली, ओके, व्हेन एवरीथिंग इज सेफ। सो आप जो चाइनीज़ खाने को गए, जो ऑर्डर आपने दिया, तो किसी ने आपका वो जो भी फ्राइड राइस था, नूडल्स था, वो कुक करके, ओके, आपको दिया, बट उसने कुक करके आपके पास नहीं लाया, उसने कुक करके एक प्लेट पे रखा, और कोई ने, मे बी अ वेटर, वो प्लेट उठाया और आपके टेबल पे लाके आपको रख दिया ना। जो बिल आपका बनता है उसमें आपने जो कुक है उसका पगार दिया है थोड़ा सा ही, और जो वेटर है उसका भी तो पगार दिया है। वो आया रहेगा एक दो बार, सर आपको पानी चाहिए, सर आपको और कुछ चाहिए। सो द कुक्स पगार इज प्रोडक्टिव बिकॉज ही एक्चुअली मेड द डिश, बट द वेटर्स पगार इज अनप्रोडक्टिव क्योंकि उसने कुछ बनाया नहीं है, उसने अपने सर्विस दिए है। सो अनप्रोडक्टिव काम ऑफिस में होता है, प्रोडक्टिव काम फैक्ट्री में होता है। Therefore, this unproductive will be written in P&L. I repeat, even though it is wages. Somebody may argue, sir, but wages तो should go to trading account. But then कौन सा wages? Productive wages, not unproductive. Unproductive, unproduction का काम, no production का काम ऑफिस में होता है. So accordingly, we will mark it P&L. Audit fees क्या है? Checking of accounts ऑफिस में होता है, P&L. Rent कुछ नहीं कहा तो ऑफिस का रेंट, फैक्ट्री रेंट बोला तो मैं फैक्ट्री में लिखूंगा, बट बिकॉज नथिंग इज मेंशन इट इज ऑफिस रेंट. ओके, सो लेट मी राइट इट इन दी ऑफिस, मतलब P&L. कन्वेंस क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन. आप बस लेके ट्रांसपोर्ट करो एक जगह से दूसरी जगह पे, रिक्शा लो, ओला लो, उबर लो, ओके, टैक्सी लो, जो भी, ओके, आपका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, तो ये नॉर्मली आप बोल सकते हो एक मैनेजर का ट्रांसपोर्टेशन है, एक क्लर्क का ट्रांसपोर्टेशन है, एक सेल्समैन का ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये प्रोडक्शन के बाद का है. देयरफॉर P&L. गुडविल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मे बी ये 11th में आपके साथ डिस्कस हुआ था, आज मैं ये आपके साथ थोड़ा लंबा डिस्कस करूंगा. सो हियर गोस, प्लीज डू पे अटेंशन बिहाइंड. सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड goodwill? Reputation. Firstly, if you notice here, it is said intangible asset. This is very important. सर ये intangible asset क्या होता है? सबसे पहली बात तो एसेट है. हाँ, एसेट मतलब मेरा, ये मैंने मेहनत किया है, मैंने ये क्या किया है,
खरीदा है, गुड, बराबर. इफ यू कैन से ये मेरा है, माइन. बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, ओके, 4 years 5 years, not many kids want to share their things with others. Okay, I bought certain Rubik's cubes for my son. He's approximately 9 years old, but still he does not share it. उनका नेचर होता है, not all children would want to share. Okay, so I repeat, जैसे मेरा है, okay, that is an asset. Now my son can show you the Rubik's cube. तो वो दिखता है, तो उसको कहते हैं tangible. बट जो दिखता नहीं है उसको कहते हैं intangible. So goodwill is an example of that. Intangible. Okay. Now a few things. कुछ बड़े लोगों ने, one of them is Mr. Warren Buffett. उन्होंने goodwill के बारे में, reputation, okay, अच्छी इज्जत, reputation के बारे में, it takes 20 years to build a reputation. अच्छा नाम बनाने के लिए एक इंसान को, एक कंपनी को 20 साल लग जाते हैं. आगे पढ़ो. एंड 5 minutes to ruin it. एक गलत काम करो, पूरा 20 साल का मेहनत बर्बाद. इफ यू थिंक अबाउट दैट यू विल डू थिंग्स डिफरेंटली. तो आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आपने, इफ यू आर अ वेरी फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, ओके, ऑफ लेटली यूज न्यूज में, ओके, देर इज अ वेरी फेमस इंडियन रेसलर, ओके, जिनका नाम एक क्राइम के साथ जुड़ा हुआ है, ओके, एक क्राइम के कनेक्शन में उनको गिरफ्तार किया गया है. ही इज इन जेल फॉर दैट. नाउ ही पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर many years. Olympic medalist, Bharat Ratna, he has been awarded, okay, awards, recognition by the Indian government at the national level. तो उनका काफ़ी अच्छा नाम था, और मे बी उन्होंने 20 साल लिए रहेंगे, हार्डवर्क, मेहनत, रेगुलर ट्रेनिंग, और वो जो नाम उन्होंने बनाया था, जब नाम बनाया था तो वो सीरियल्स में आते थे, इंटरव्यू में आते थे, उनके नाम की वजह से. तो उनका नाम उनको कमा के देता था. वेरी इंपॉर्टेंट, उनका नाम, उनका गुडविल उनको कमा के देता था. अभी ऑल ऑफ अ सडनली, बिकॉज हिज नेम इज कनेक्टेड टू दिस क्राइम, दैट गुडविल इज टार्निश्ड, उस पर धब्बा लग चुका है. ओके, सो क्या कहा है यहाँ पे? यू कांट बाय गुड रेप्यूटेशन. दिस रेसलर कैन से नो प्रॉब्लम, 20 सालों में जो मेहनत मैंने की थी, जो मैंने नाम बनाया था, अगर वो नाम दूर हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस क्राइम, ओके, मैं एक काम करता हूँ, मार्केट में जाके खरीद लेता हूँ. नो, नहीं कर सकते. यू हैव टू वर्क हार्ड. अभी हो सकता है कि वो ये क्राइम के साथ जुड़े हुए नहीं हो, बट एक धब्बा लग चुका है, ओके. अगर उनको वापस से ये अपना नाम वापस से पैदा करना है, बनाना है, he has to work hard, double hard. So I repeat myself, goodwill क्या होता है? A reputation. Okay, when you talk about the Tata company, the Tata brand of India, वो कोई भी सेक्टर के अंदर हो, ओके, वो ऑटोमोबाइल्स में हो, वो टेलीकम्युनिकेशंस में हो, ओके, वो हॉस्पिटैलिटी में हो, होटल्स में हो, ओके, देयर इज अ सर्टन गुड रेप्यूटेशन जो टाटा कंपनी का. माई वाइफ, ओके, शी, एक ज़माने में उनके पास गाड़ी थी, अभी नहीं है, बट वो गाड़ी टाटा की उन्होंने खरीदी थी. तो उनके दिमाग में ये फिट है कि अगर जो हम मार्केट में खरीदने जा रहे हैं, अगर टाटा का प्रोडक्ट मिलता है, हम लोग खरीदेंगे. अंधाधुन, कुछ सोचती नहीं, खरीद लेती है, बिकॉज उनके दिमाग में, मेरी वाइफ के दिमाग में टाटा का एक गुडविल है, गुड रेप्यूटेशन, क्योंकि इतने सालों से ये जो ब्रांड है टाटा मार्केट में है, इंडियन मार्केट में काम कर रहा है एंड कंटिन्यू करेगा आगे जाकर. गुडविल क्या है? रेप्यूटेशन. इनटेंजिबल का मतलब क्या है? ओके, इफ आई वुड टेल माय वाइफ
अच्छा, आप बोलते हो कि ये टाटा का अच्छा नाम है, अच्छा नाम है, किधर है दिखाओ मेरे को। ओके, मुझे किधर देखना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कि मेरे को किसी पर्वत के चोटी पर टाटा का अच्छा नाम दिखेगा? दिखेगा नहीं। मेरी वाइफ बोलेगी मेरे दिमाग में है, इट्स इन माई माइंड, विच इज राइट। इफ यू थिंक गुड अबाउट समवन, दैट गुड फीलिंग्स, ओके, इज इन योर हार्ट, इज इन योर माइंड। यू कैन नॉट टच गुडविल, बट येस, अगर आपने गुडविल बनाया है, अच्छा रेप्यूटेशन मेहनत करके, ओके, मेहनत किया, यू आर अ वर्ल्ड नोन म्यूजिक आर्टिस्ट, यू आर अ वर्ल्ड नोन डांस परफॉर्मर, यू आर अ वर्ल्ड नोन footballer, a world known sports personality, a world known what, film actor, okay, nepotism में, आई नो थोड़ा चर्चा लंबा हो रहा है, बट दीज थिंग्स आर कनेक्टेड. Nepotism is a lot discussed nowadays. So what does that word nepotism mean? इसका बाप तो बड़ा एक्टर है, इसके लिए इसको चांस मिला, इसकी तो शक्ल नहीं है, या तो अकल नहीं है, या तो एक्टिंग नहीं है. यस, सच है दैट देर आर सम नंबर ऑफ एक्टर्स हु कैनॉट बी कॉल्ड एज एक्टर्स, बट जस्ट बिकॉज उनके पापा मम्मा ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम बनाया है, इन लोगों को चांस मिला है, मिलने वाला है. इनकी मेहनत की वजह से नहीं, इनके माँ बाप के एक्टिंग कैपेबिलिटीज के नाम की वजह से. सो आई रिपीट, मेहनत पापा मम्मा ने किया, जो उसका फायदा है वो बच्चे को मिल रहा है. ओके, ये गुडविल होता है. इट इज़ एन एसेट, इट इज़ एन intangible asset. So I am hoping कि even though the explanation was quite lengthy, but it's the first time जो मैंने दिया, तो मेरे को उसमें कंजूसी नहीं करनी थी. ओके, हाँ. सो गुडविल जो है वो है एसेट, इंटेंजिबल एसेट. देन कॉपीराइट, अ सेकेंड आइटम टुडे, जिस पे मैं थोड़ी चर्चा करूँगा, बिकॉज सम ऑफ यू मे नॉट नो और मे नो थोड़ा थोड़ा अबाउट कॉपीराइट. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड copyright? Well, let me show you, because it's always a good idea to show you. So behind me, many serials जब खत्म होते हैं, many movies, almost all movies, all serials जब खत्म होते हैं, उसके एंड में ये आता है, all rights reserved, copyright reserved. Now it is ये जो word है ना, इस पे ध्यान देना, intellectual property. About there are many words. The first one is copyright. उसके नीचे आपको दिखेगा पेटेंट, आपको थोड़ा नीचे दिखेगा इनोवेशन, ट्रेडमार्क. तो ये हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे. कॉपीराइट क्या होता है? वेल, व्हाट इज कॉपीराइट? कॉपीराइट अलाउज पीपल, यू एंड मी, वी आर पीपल, सच एज ऑथर्स. हाँ, वी हैव टू बी ऑथर्स, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट. अच्छा, म्यूजिक मतलब कुछ नया धुन बनाया, कुछ नया गाना बनाया, टू मेक मनी ऑफ देयर लेबर. सो ऑब्वियसली ना, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक नया फिल्म की स्टोरी बनती है. मेहनत करना पड़ता है जब जाके एक नया धुन, म्यूजिक का एक नया गाना बनता है. अगर कोई भी इसको कॉपी कर ले, डाउनलोड करो, कॉपी करो, तो फिर मेरी मेहनत का क्या? मेरी मेहनत में तो पानी फिर गया. हाँ, तो व्हेन यू क्रिएट समथिंग न्यू, और आपको आपके वो उस क्रिएशन को बचा के रखना है, उस डिजाइन को, उस कॉन्सेप्ट को, ओके, उस म्यूजिक को, उस स्टोरी को बचा के रखना है. ओके, ट्रक्स जब चलते हैं ना, तो पीछे लिखा हुआ होता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला. तो बुरी नजर तो मतलब दुनिया की बुरी नजर आपके ऊपर होगी इफ यू आर एन इन्वेंटर. ओके, तो आई रिपीट माई सेल्फ, तो हाउ कैन यू प्रोटेक्ट? ओके, आपने सीरियल बनाया एंड दैट सीरियल इज समथिंग वेरी यूनिक, उसका स्टोरी एकदम डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट एकदम अलग है. हाँ, तो हाउ डू यू प्रोटेक्ट दैट सीरियल? बिकॉज एनीबडी कैन स्टार्ट टू इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो स्टार्ट टू मेक दैट सीरियल. उसको आपको कॉपीराइट करना पड़ेगा. सो वेरी सिंपल. अगर एक एग्जामिनेशन में दो बच्चे हैं, एक आगे एक पीछे, आगे वाला पूरा पोर्शन पढ़ के आया है, पीछे वाला आगे वाले के भरोसे आ गया,
तो पीछे वाला आगे वाले को बोलेगा यार हेल्प कर देना प्लीज, ओके मैं कुछ पढ़ा नहीं आज के लिए, मेरे को हेल्प कर दे, ओनली फॉर टुडे। आगे वाला अगर शाना रहेगा ना, जो वो है, वो क्या बोलेगा, कॉपी करना है तेरे को, राइट मेरे पास है, ओके तुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे तब जाके मैं तेरे को कॉपी करने को अलाउ करूंगा। आई डोंट मीन ऐसा हो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट इफ द सेकेंड स्टूडेंट wants to copy, the right of copy is with the first student, उसके पास कॉपी राइट है, वो बेचेगा। सिमिलरली मैंने नया गाना बनाया, मैंने नया म्यूजिक बनाया, मैंने एक नई सीरियल बनाई, मैंने एक नया स्टोरी बनाया, ओके आई हैव द कॉपी राइट। मैं एक ऑथर हूं, मैंने एक बुक लिखा है, आई हैव द कॉपी राइट। आपको पिक्चर बनाने का है, मेरे स्टोरी का, देर आर सो मेनी बुक्स, स्पेशली इंडिया में आपने चेतन भगत के बारे में तो सुना ही है, उनके मेनी बुक्स हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू मूवीज, ओके एंड देर आर मेनी अदर ऑथर्स इंटरनेशनल एंड नेशनल जिनके बुक्स का क्या बन चुका है, मूवी। तो जब प्रोड्यूसर वो मूवी बनाता है, ही कैन जस्ट कॉपी द स्टोरी, ही हैज टू गो to whom the musician, he has to go to the author and he has to say sir आपके पास copyright है, please give it to me, पैसे कितने हैं सर बोलो। so the author copyright की वजह से पैसा कमाता है, अच्छा है ना, कितना अच्छा है, ओके तो आई रिपीट माई सेल्फ, आगे अगर आप थोड़ा पढ़ो, इट प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम टेकिंग देयर वर्क फॉर फ्री, बराबर है। अगर मेरे पास कॉपीराइट है, नोबडी कैन जस्ट कम एंड पिक इट अप, मेरा स्टोरी लेके पिक्चर बना दिया, नहीं, फ्री का नहीं, पैसा देना पड़ेगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम ऑल्टरिंग देयर वर्क विदाउट परमिशन। तो आई रिपीट, आई विल टेल द प्रोड्यूसर, देखो हाँ जो स्टोरी है वो स्टोरी एग्जैक्टली मूवी बननी चाहिए, इसके अंदर कोई भी आपको मसाला एक्स्ट्रा डालना नहीं है, कॉपीराइट मेरे पास है, तो उसके वजह से मैं कमाता हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा है, आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा है, उसके बाद भी अच्छा है। सो इट इज एन एसेट, इट इज अ इनटेंजिबल एसेट, ये वर्ड याद रखना, वर्ल्ड में इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके सो इट्स अ प्रॉपर्टी मेरा, ओके बट इट इज कॉल्ड एज, वो मेरे इंटेलिजेंस से, वो मेरे सोच से, थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है कि यहां से कुछ पैदा हुआ था। सो going back to the question, little down, copyright is our second intangible asset today. बिल्डिंग एसेट है, ये टेंजिबल है, क्यों, एनी बिल्डिंग को यू कैन गो एंड टच ना, टच कर सकते हो। पार्टनर सुचेताज लोन, सुचेता इज द ओनर, मालकिन, उन्होंने लोन दिया है, कैपिटल तो उन्होंने दिया ही था, लोन कोई भी दे बिजनेस के लिए, इट इज अ लाइबिलिटी। कभी लोन बाहर वाला देता है, कभी लोन घर वाले, घर वाले मतलब पार्टनर तो घर वाले ही हो गया ना, इसके लिए, ओके दैट्स ऑल्सो अ लाइबिलिटी, पार्टनर का लोन। इन्वेस्टमेंट, मेरे पापा मम्मा ने मेरे पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करके रखा है, अच्छी बात है। सो व्हेन यू बिकम बिग, व्हेन यू बिकम वांट टू बिकम इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, एनी बिग थिंग, ओके बिसाइड्स दिस देयर आर मेनी मोर मॉडर्न कोर्सेज, तो जो पैसा लगेगा उसके लिए चिंता मत करना, क्योंकि आपके पापा मम्मा ने इन्वेस्ट करके रखा, इट्स एन एसेट। लास्टली कैश एट बैंक एसेट। सो marking of the trial balance is done. I repeat, students, this trial balance is called as journal style trial balance. It is one list, okay, and debit credit same line में दिया है। कभी कभी डेबिट क्रेडिट तो वही लाइन में, अप एंड डाउन में नहीं, वही लाइन में देते हैं, ओके। फर्स्ट एडजस्टमेंट, टुडे वी डोंट हैव हिडन एडजस्टमेंट, नहीं है। स्टॉक ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक है, इसके ऊपर कोई बड़ा डिबेट हमको करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू पुट अ स्टार मार्किंग। पॉइंट नंबर बी, गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ये क्या है, देखो द वर्ड गुड्स कहा ना, ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में कनेक्शन होगा, कनेक्शन, ओके गठबंधन, कनेक्शन होगा, हाँ। बाकी फॉर टुडे, फॉर एडजस्टमेंट नंबर 2, no need to mark anything. I'll explain to you when we come to adjustment number 2. 3.
मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिट. जैसे मोटिव पावर के अंदर डिपॉजिट का चक्कर है, तो एक काम करते हैं, मोटिव पावर को स्टार मार्क, लीव वन लाइन, देन depreciate building. Okay, my apologies, I've got a runny nose. So depreciate building, simple, building ko star mark. Fifth, write off 2000 for bad debt and maintain RDD at 3% on debtors. Bad debt कौन कराता है? डेटर कराता है. RDD doubtful debt, doubt, शक किस पे है? डेटर पे ही है. अच्छा, दोनों का रिश्ता डेटर के साथ है. यस, एडजस्टमेंट नंबर 5. तो डेटर को 2 स्टार करो, हो गया. एंड लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 4000. होल्ड ऑन, आई एम रिमाइंडिंग यू, ये डिसऑनर्ड बिल का चक्कर क्या है? देखो, पूरा स्टोरी तो नहीं बताऊंगा मैं, बट संक्षेप में समरी. कस्टमर्स 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि मैंने ये लास्ट लेक्चर में किया है. कुछ कस्टमर्स पे आपका भरोसा है, वो होते हैं डेटर्स. कुछ कस्टमर्स पे आपका भरोसा नहीं है, क्योंकि वो नए हैं मार्केट के अंदर, तो आप उनको क्या बोलते हो कि सर, मैडम, ये पेपर लो, ये बिल है, आपने मेरे से 1 लाख का सामान लिया है, मैंने इसमें लिखा है, आप साइन करके दो ताकि मेरे पास प्रूफ रहे. इस पे मैंने लिखा है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैंने कुछ तो लिखा है. 1 महीना, तो मैं 1 महीने बाद ये बिल लेकर आपके पास आऊंगा, आपको ये बिल दूंगा, आप मेरे को पैसे देना. स्टोरी खत्म. ओके, हाँ, तो उस स्टोरी खत्म को कहते हैं क्या? ऑनर ऑफ अ बिल, ऑनर. बट अगर मैं 1 महीने बाद जाता हूं और मुझको नहीं मिलता है मेरा पेमेंट, तो मैं आग बबूला हो जाता हूं, मैं गुस्सा हो जाता हूं. अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन. वेल, अभी वो एंग्री थोड़ा ओल्ड मैन है, हाँ, बट मैं वो बिल को पूरी बनाता हूं और मुंह पे मार के आ जाता हूं, कस्टमर के मुंह पे मार पे. तो डिसऑनर्ड बिल मतलब क्या है? अरे, मैंने उसको बिल दिखाया, उसने मेरे को पेमेंट ही नहीं दिया. तो व्हाट डू वी डू? ये 2 चीजें, बिल रिसीवेबल से माइनस, डेटर में प्लस. सो 1 स्टार फॉर बिल रिसीवेबल, 1 स्टार फॉर डेटर. तो डेटर में तो पहले से 2 स्टार है मेरे प्यारे बच्चों. तो डेटर को 1 स्टार, बिल रिसीवेबल को. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द सीक्वेंसिंग. जब आपका स्कूल चल रहा था, डिड यू डू 7th स्टैंडर्ड एंड देन यू डिड 4th स्टैंडर्ड, देन यू डिड 6th स्टैंडर्ड, देन यू डिड 5th स्टैंडर्ड? नो 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 सर, ऐसा नहीं होता. इट इज 4th, 5th, 6th, 7th. यस, ऑर्डर बराबर होना चाहिए. तो जानबूझकर, इवन इन दिस प्रॉब्लम, ऑर्डर में एग्जामिनर ने गड़बड़ किया है. इफ यू डू एडजस्टमेंट नंबर 5, व्हाट इज दैट? बैड डेप्ट एंड आरडीडी. ओके, तो आपका एडजस्टमेंट नंबर 5 गलत तो आएगा ही, 6 भी गलत आ जाएगा. बिकॉज आई शोड लास्ट टाइम, व्हाट डिड आई शो यू? होल्ड ऑन, कि जब आप डेटर करो तो ये जो आरडीडी होता है ना, इट हैज टू बी एक्सट्रीम एंड नीचे, क्योंकि वो एक परसेंटेज का कैलकुलेशन है और परसेंटेज एक नंबर पे होता है. अगर वो नंबर ही गलत है तो परसेंटेज भी गलत रहेगा. सो ऊपर देखो, पहले आप डिसऑनर्ड बिल करो जो एडजस्टमेंट नंबर 6 है, उसके बाद में बैड डेप्ट, न्यू आरडीडी. मीनिंग, अगेन आई डिड दिस लास्ट लेक्चर, आई एम रिपीटिंग इट. दैट इज द रीजन मैं 1 2 3 4 5 6 आई एम नॉट सॉल्विंग इट एज पर द टेक्स्ट बुक सीक्वेंस, क्योंकि उसके अंदर कोई कनेक्शन ही नहीं होता. जो सम मैंने किया और जो आज कर रहा हूं, देयर इज सम बिट ऑफ अ कनेक्शन. द एडजस्टमेंट्स में हेरा फेरी हुई है, कुछ तो गड़बड़ है. ओके, आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू रिमेंबर दैट यू विल डू एडजस्टमेंट नंबर 6 पहले एंड देन डू एडजस्टमेंट नंबर 5. प्लीज नोट, दीज वर ऑल द मार्किंग्स. होपफुली आपने कर लिया. हमारा 34 मिनट्स मेरे क्लॉक के हिसाब से जा चुका है. जल्दी जल्दी जल्दी, आई होप आपका फॉर्मेट रेडी है. वी गेट स्टार्टेड विद द पोस्टिंग. सो फर्स्ट, परचेस एंड सेल. डेबिट में परचेस, क्रेडिट में सेल. 65,000, 185,500. स्टार्टिंग, प्लीज स्टार्ट विथ मी. सो देख अबाउट
65,000 inner column purchases and 1,85,500 inner column sales. नेक्स्ट, वर्क्स मैनेजर्स सैलरी, फैक्ट्री के मैनेजर का पगार, तो डेबिट में आएगा क्योंकि डेबिट में दिया है 2,300. प्लीज राइट द मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन. आई हैव टोल्ड यू व्हाट 4-5 टाइम्स इज प्लानिंग. प्लानिंग हैज टू बी आराम से, इट हैज टू बी परफेक्ट. Planning has to be आराम से, it has to be perfect. Then when you take action on that plan, this is action, well not this, जब solve कर रहे, that will also go perfect. उसके अंदर भी कोई गड़बड़ नहीं होगा. So let's continue. Capital 75 and 40,000. पार्टनर का पैसा है, लिख लो पार्टनर के अकाउंट में 75,000 ऊपर and 40,000. Next, opening stock 18,700. ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट लाइन में लिख लो 18,700. डेटर एंड क्रेडिटर, ये बी वेरी केयरफुल विद डेटर. क्रेडिटर बिंदास, डेटर में ना 3 स्टार है. अच्छा तो 5 लाइन खाली रखना पड़ेगा. वेरी राइट. 47,500 जो डेबिट में है वो डेटर है, जो डेबिट में है वो डेटर है. अबाउट लीव नीचे 1 2 3 4 5 बस, ज़्यादा नहीं. ओके सो 3 स्टार रहेगा, 5 लाइन में अपना काम हो जाएगा. एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर के ऊपर 5 लाइन रखो, क्रेडिटर के ऊपर कैपिटल के लिए 35,000 ऊपर, नीचे नहीं. ओके नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज. फर्स्ट वर्ड वेजेस आया ना तो हमने फैक्ट्री में लिख लिया बिकॉज वी डोंट नो वेजेस कितना है, सैलरी कितना है, हमने फर्स्ट वर्ड के हिसाब से लिख लिया. नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल. लास्ट 2-3 लेक्चर्स से कंटिन्यूसली आया है. बिल रिसीवेबल इनर कॉलम 22,000. लीव 1 लाइन, लीव 1 लाइन. फिर बिल पेएबल क्रेडिटर के नीचे लिख लो, देयर इज नो लाइन टू बी लेफ्ट. 27,300. डिस्काउंट, इट इज ऑन द क्रेडिट साइड. प्लीज लुक इनटू योर टेक्स्ट बुक्स. ओके आपको दिखेगा. सो P&L, क्योंकि दिस इज माइंड कैलकुलेशन, क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट 400. ओके डन. डेबिट में होता तो डेबिट में लिख लेते. मोटिव पावर, फैक्ट्री में जो मशीन्स है वो जो इलेक्ट्रिसिटी उनकी वजह से जो बिल आता है उसको मोटिव पावर आप कह सकते हो. इनर कॉलम 1350 बिकॉज एक एडजस्टमेंट है ना. कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी नहीं भरोगे कस्टम ऑफिसर को तो वो तुम्हारा रॉ मटेरियल नहीं देगा, तुम्हारा ट्रक उधर ही अटक जाएगा. फिर तुम क्या बनाएगा 1,500. यू हैव टू पे द गवर्नमेंट अथॉरिटीज कस्टम ड्यूटी. नहीं दे दो तो क्लियर करो और आने दो, मेरा ट्रक आने दो. नेक्स्ट, इंटरेस्ट 1,300 क्रेडिट में है तो मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय इंटरेस्ट 1,300. नेक्स्ट, अनप्रोडक्टिव. प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है, अनप्रोडक्शन ऐसा नॉट अ परफेक्ट वर्ड बट नो प्रोडक्शन ऑफिस का है तो ऑफिस में डाल दो डेबिट में, ऑफिस में डाल दो डेबिट में 3,000. नेक्स्ट, ऑडिट फीस, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स जो ऑफिस में होता है, ऑडिट फीस उसको कहते हैं ऑडिट 2,500. देन रेंट, कुछ नहीं कहा तो ये ऑफिस का रेंट है. फैक्ट्री रेंट बोलेगे तो फिर कुछ कहा उन्होंने तो मैं फैक्ट्री में लिख दूंगा 1,800. नेक्स्ट, कन्वेयंस, सेल्समैन का आवाजावी आना जाना, मैनेजर का आना जाना तो वो ऑफिस से कनेक्टेड है 2,000. ओके सो एवरीथिंग इज डेबिट डेबिट डेबिट. नेक्स्ट, काफ़ी लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन के बाद में गुडविल मतलब रेप्यूटेशन, आपका रेप्यूटेशन. ओके अगर आपका रेप्यूटेशन, अगर आप किसी के साथ झगड़े में हो गए, झगड़ा फिस्टिकप्स फाइट और FIR का कोई बड़ा मामला हो जाएगा तो ऑब्वियसली ना पुलिस का चक्कर हो जाएगा.
एंड देन चलो सब निपट गया, बट वो कोर्ट में मामला चल रहा है, देन विल यू बी परमिटेड टू विदाउट परमिशन फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री? यूल से अरे सर मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला था, ओके, अ वेरी गुड जॉब, अ वेरी गुड पेमेंट अब्रॉड, बट सर वो एयरपोर्ट पे जाने के बाद मालूम पड़ा मेरे को तो परमिशन ही नहीं है बाहर जाने का। क्यों सर? वो मेरा नाम खराब हो गया सर, वो कोर्ट केस में ना एक दिन गुस्सा हो गया था, मारामारी हो गई, अभी सर पूरा अपना इज्जत का कचरा हो गया है। सो आई रिपीट, रेप्यूटेशन मैटर्स, ओके, रेप्यूटेशन होगा, लोग सलाम ठोकेंगे। सो गुडविल इज एन एसेट। तो जस्ट बिहाइंड मी, आउटर कॉलम 25,000. कॉपीराइट ऑल्सो इज एन एसेट। नया गाना, नया स्टोरी, नया म्यूजिक, नया डिज़ाइन। काफ़ी मोबाइल कंपनीज अपनी डिज़ाइन को कॉपीराइट करते हैं ताकि दूसरा उस डिज़ाइन को कॉपी ना करे। हर एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का एक डिज़ाइन होता है। शैम्पू रहेगा, पिकल का बॉटल रहेगा, एक डिज़ाइन होता है, तो वो डिज़ाइन को कॉपीराइट किया जाता है। नेक्स्ट, बिल्डिंग एसेट है भाई। छोटा बिल्डिंग 2 माले का या 20 माले का या 200 माले का। इनर कॉलम 88,000, लीव वन लाइन। नेक्स्ट, पार्टनर सुचेताज लोन, एनी लोन, जब somebody gives a loan, whether वो पार्टनर हो या बाहर वाला हो, ओके, पार्टनर इज अंदर वाला, इट इज अ लाइबिलिटी। तो प्लीज राइट लाइबिलिटी 6,150। इन्वेस्टमेंट, ओके, मतलब यू शुड से गॉड ब्लेस माई मम्मी पापा बिकॉज दे डिड इन्वेस्टमेंट फॉर मी, सो दिस इज एन एसेट। हाँ, टुडे देर इज नो हिडन एडजस्टमेंट। सर लास्ट टाइम तो तुमने हिडन एडजस्टमेंट किया था, परसेंटेज होना चाहिए। परसेंटेज नहीं है तो मैं थोड़ी पैदा कर सकता हूँ, नहीं चलो 2%, नहीं चलो 4%, नहीं नहीं नहीं, परसेंटेज तो हम लोग पैदा नहीं कर सकते, तो देर इज नो हिडन एडजस्टमेंट। लास्ट, कैश एट बैंक, so this behind me asset 26,000. The trial balance is samapt, finish. Adjustments, all, I think there are 6 adjustments, one by one. First, closing stock, सबसे simple, 31st March 2019 ऊपर 19,700 का क्लोजिंग स्टॉक था। जो गोदाउन में माल बच गया उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते। वो कल, वो परसों, वो तरसों लॉकडाउन हो जाएगा ना, तो जो किचन में सामान है वही काम आएगा माय डियर। हाँ, तो जस्ट मेरे पीछे उसी से हम लोग खाना बनाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक 19,700। ये बहुत पुश्तैनी एडजस्टमेंट है, वी हैव डन इट मेनी टाइम्स। सेकेंड, गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ये चक्कर क्या है? अच्छा, पहली बात, ये गुड्स कहाँ से आपने डिस्ट्रीब्यूट किए? जहाँ पे रखे थे। कहाँ पे रखे थे? गोदाउन में रखे थे। ओ, तो गोदाउन से ये माल गया, यस, ये माल गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो द मोमेंट आपको जो पल आपको गुड्स दिखे, समझ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, प्लीज सी द हाईलाइटेड पार्ट इज टू, ध्यान आपका वहां पे होना चाहिए। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ओके। अभी ये क्यों करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। 3,000, ये फर्स्ट इफेक्ट। ये क्या है? सर ये क्रेडिट है, आपने क्रेडिट मिलता है, वेरी राइट, वेरी ट्रू। दिस इज, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यार कोई भी कंपनी फ्री का क्यों देगी? फ्री का देगी तो प्रॉफिट कैसे कमाएगी? हाँ, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। जैसे एग्जाम्पल, तस्वीरों में हम बात करते हैं, यू गो टू बाय अ कार, चलो नॉट यू, मम्मी पापा गोज टू बाय अ कार, बट देन देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार। पेट्रोल वाला कार, डीजल वाला कार, ओके, वेरिएंट, गाड़ी में अलग अलग वेरिएंट आते हैं, ओके, थोड़ा सस्ता वेरिएंट, थोड़ा बड़ा वेरिएंट, लग्जरी सीट्स वाला, एप्पल कार प्ले। सो कंफ्यूज्ड, या पापा मम्मा इज कंफ्यूज्ड, हाउ शुड वी डिसाइड विच कार? द कार का शोरूम में से जो ओनर है, सर आप एक काम करो ना, हमारे पास एक डेमो कार है, सर आप उसमें बैठो, सर एक 5-6 किलोमीटर घूम के आ जाओ, आपको फील आएगी, फील।
गाड़ी का, गाड़ी कैसे चलती है, फास्ट चलती है, स्लो चलती है, फैमिली के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। इफ यू आस्क द ओनर पैसे कितने, बोलेगा सर फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, जाओ घूम के लेके आ जाओ, दूर मत जाना, मे बी 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चला के लेके आ जाओ। व्हाई इज ही गिविंग दिस फ्री? क्योंकि मे बी उसमें उसका पेट्रोल 200-300 का जाएगा, बट वो एक 10-15 लाख की गाड़ी बेच सकता है। बिकॉज योर पेरेंट्स आर कंफ्यूज्ड। इट्स अ बिग अमाउंट। इफ इट्स अ 10-15 लाख का गाड़ी, यू कैंट से 10-15 लाख देता हूं बाद में मैं ट्रायल लेता हूं, नो। तो गाड़ी वाला खुद आपको फ्री का ट्रायल देगा, बोलेगा सर आप यूज करो। ओके हाँ, चक्कर गाड़ी में ही नहीं होती, फ्री का। मिठाई वाले के पास गए, ओके अभी ये मिठाई देख के कितने लोग के मुंह में पानी आ जाएगा। सो सर इतना मिठाई है सर, मतलब सर मैं कंफ्यूज हो गया। ओके सर व्हाट टू बाई, इसको खरीदो उसको खरीदो उसको खरीदो, इसका टेस्ट उसका टेस्ट, सर नाम लुक सब थोड़ा थोड़ा सेम ही लगता है। मिठाई वाला खुद बोलेगा आपको सर ये लेना ये लेना, ये लो सर, ये लो 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 सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टुकड़ा 2 लोग रहेगा टुकड़ा बना के देगा, सर खाओ खाओ। ओके इसका पैसा है, अगर आप उससे पूछो नहीं सर आप टेस्ट करो ना सर, बिकॉज ही नोज वो आपको एक मिठाई देगा, आप 1 किलो का ऑर्डर करोगे, इसके लिए वो आपको फ्री का दे रहा है। बिकॉज मे बी दैट 1 kg इज 600-800 रुपीज, महंगा है। खरीदने के बाद पैसे देने के बाद में यू शुड नॉट रिग्रेट, क्या अरे यार 800 रुपया डाल दिया, टेस्ट कुछ खास नहीं है, ये वाला मुझे पसंद नहीं, वो वाला मुझे पसंद था। मिठाई वाला दुकानदार खुद आपको फ्री का देता है, वेदर वो ये हो या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाओ, आपको काना का पे मिलेगा एक क्या पिकल वाला। ओके आई रिपीट, उसके पास इतने वैरायटी होते हैं, आप जब आसपास से होके गुजरोगे ना मुंह में पानी आएगा, बिकॉज देर आर सो मेनी फ्लेवर्स, योर माइंड इज प्रोसेसिंग ऑल ऑफ दैट, एंड इफ यू डोंट वांट टू बाय यू स्टिल विल गो, ये लो ना मम्मी, वो लो ना मम्मी, ये लो ना। द भैया जी ओके वो भी बहुत शाना है, वो जल्दी जल्दी से छोटा सा एक स्पून लेगा, निकालेगा, सर खाओ। ओके आंटी जी ले लो ना, बच्चों को दे दो ना, आंटी जी थोड़ा थोड़ा टेस्ट करा लो ना। आइसक्रीम में भी ऐसा होता है, शॉपकीपर फ्री का देता है, पूरा दुकान नहीं, थोड़ा सा। वो क्या कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, भले ही सामने है, बट यू इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लेवर, टेस्ट, द फील, गाड़ी का फील। ओके एंड द कस्टमर डज नॉट नो, तो दुकानदार खुद बोलता है सर मैडम चख लो, चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा चखोगे आप बड़ा ऑर्डर दोगे, आप थोड़ा फील गाड़ी का लोगे, बाइक का लोगे, आप बड़ी गाड़ी बाइक खरीद के लेके जाओगे। एडवर्टाइजमेंट का तरीका है फ्री का देना। आई होप ये आपको समझा। मेनी टाइम्स यूट्यूब पे मैं मोबाइल के कितने रिव्यूज देखता हूँ, ओके आई लाइक टेक्नोलॉजी, ओके एंड मेनी टाइम्स दैट पर्सन हु रिव्यूज इट ऑन यूट्यूब वो बोलता है कंपनी ने मेरे को फ्री का दे दिया, अचार नहीं दिया, मोबाइल दिया। अच्छा तुझे फ्री का दिया, तूने उसका रिव्यू बना दिया, क्यों? क्योंकि तेरे सब्सक्राइबर्स 15 लाख 20 लाख 50 लाख, सो द कंपनी नोज एक बंदे को फ्री का दो, बट जब वो अच्छा कहेगा हमारे मोबाइल के बारे में, उसके जो 10 लाख लोग हैं उन लोग खरीदने आएंगे, कंपनी के लिए तो अच्छा है ना, एडवर्टाइजमेंट हो गया। सो फ्री का कंपनी क्यों देती है, प्लीज नोट, इसके पीछे दया धर्म का कोई इरादा नहीं है, पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट का पूरा इरादा है, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में आता है। सो आई होप यू सी दैट। डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट 3000, टू इफेक्ट्स फॉर एडजस्टमेंट नंबर 2। सो खत्म हो गया। नेक्स्ट 3 मोटिव पावर नया है। व्हाट इज मोटिव पावर? अरे वो फैक्ट्री में मशीन है ना बड़े बड़े, वो जब चलते हैं ना तो बिल आता है, उसको कहते हैं मोटिव पावर। अच्छा कितना बार इंक्लूड्स, अच्छा क्या है उसके अंदर, क्या गड़बड़ है? 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। तो मतलब क्या चक्कर है? देखो भाई डिपॉजिट
क्या होता है पहले वो समझो। अगर आपने लेट्स से मैं एक काफ़ी यूट्यूब में खुद आई एम अवेलेबल ऑन यूट्यूब, मैं भी देखता हूँ दूसरों के लिए। ओके, सो देयर वाज अ यूट्यूबर जिनको सोनी का एक नया कैमरा अपने व्लॉगिंग के लिए यूज़ करना था, व्लॉग्स क्रिएट करने के लिए। ओके, शूटिंग पर्पसेस। मतलब कैमरा इज़ वेरी कॉस्टली। ओके, मतलब 1 लाख 2 लाख कैमरे के लेंस तो उससे ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं। तो जो दुकान से उन्होंने लिया, वो दुकानदार ने कहा सर आप एक काम करो, 10-20 हज़ार का डिपॉजिट रखो, क्योंकि सर आप 8-10 दिन यूज़ करोगे, फिर आप डिसाइड करोगे प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। बट सर व्हाट इफ़ वो डैमेज हो गया तो नुकसान हो जाएगा ना सर, आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा। तो यूट्यूबर चलेगा, नो प्रॉब्लम्स, बराबर है, मैं 2 लाख की चीज़ ले रहा हूँ। ओके, खरीदा भी नहीं मैं सोचने वाला हूँ खरीदने के लिए, रखो 20,000 डिपॉजिट। हाँ, बट इफ द यूट्यूबर आफ्टर डूइंग द शूटिंग ऑफ 10 days डैमेज कुछ नहीं किया, ओके, ही सेज नहीं यार इसमें कुछ ऐसा खास टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे लिए, तो आई डोंट वांट दिस, ही गोज एंड गिव्स इट बैक, डिपॉजिट मिल जाता है, आपने डैमेज नहीं किया। डिपॉजिट इज रिफंडेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक में फिक्स डिपॉजिट, मम्मी पापा ने पैसा दिया, अच्छा मतलब पैसा डूब गया, नहीं, रिफंड वापस आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स आप ऐसी कोई चीज भाड़े पे लेते हो, ओके, बट उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, एक डिपॉजिट। क्यों, आपने घर भाड़े पे लिया 11 महीने का, डिपॉजिट देना पड़ता है, रेंट तो देना ही है, डिपॉजिट देना पड़ता है। बट अगर आपने घर में कोई तोड़म ताड़ी खिड़की, डाइनिंग टेबल, बाथरूम फिक्सचर कुछ तोड़ा नहीं है, डिपॉजिट फिर आ जाएगा। यहां पे डिपॉजिट किसका है, वो जो मीटर लगता है ना उसका। ओके, अगर आप वो मीटर को ना तोड़ो, बराबर से वो मीटर चलेगा, ओके, और आपने बाद में आपका कनेक्शन कटवा लिया, तो वो डिपॉजिट वापस आ जाएगा। सो आई रिपीट, डिपॉजिट इज एन एसेट। क्यों, रिसीवेबल। यहां पे क्या बोला, वो पावर मीटर में उन्होंने जोड़ दिया। जब आपको अडानी जी या इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इफ यू आर एंड यू आर वाचिंग दिस लेक्चर, और आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, कभी कभी एक साल में 1 या 2 बार, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आता है। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, वो बिल के अलावा होता है। बिल तो देना है, बिल एक बार दिया, पैसा गया। डिपॉजिट का ऐसा नहीं है, डिपॉजिट आप देते हो, और अगर आपका कनेक्शन आपने इन फ्यूचर कटवा लिया, पूरा डिपॉजिट फिर मिल जाएगा। सो डिपॉजिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिकॉज बिल का पैसा दिया गया, डिपॉजिट का ऐसा नहीं है, वापस आएगा, रिसीवेबल। देयरफॉर मोटर पावर में 500 का डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, गलत है। क्योंकि वो खर्चा नहीं है। When you write there on the debit side 1350 के अंदर 500 डिपॉजिट, अरे बाबा, बट इट इज नॉट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इट इज एन एसेट, रिसीवेबल। क्यों लिखा आपने वहां पे, गलती हो गई, क्षमा, माइनस कर देता हूं, माइनस डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर विच इज 500, आउटर कॉलम 850, फर्स्ट इफेक्ट माइनस किया। अच्छा, और आगे हमको आगे मिलेगा ना, रिसीवेबल ना, फ्यूचर में ये डिपॉजिट मिल जाएगा, एसेट, मेरे प्रियो एसेट, जस्ट बिहाइंड। अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा मुश्किल है ये, हाँ, क्योंकि दूसरा कीबोर्ड काफ़ी दूर है मुझसे। सो हियर डिपॉजिट विथ फॉर पावर मीटर इज 500। ओके, सो एवरी हाउस, इफ़ यू स्टे इन बॉम्बे, चलो ज़्यादा दूर की बात नहीं करते हैं, ओके, हर घर में जहाँ पे अडानी जी का या टाटा का इलेक्ट्रिसिटी आता है, डिपॉजिट कंपनी को देना ही पड़ता है। ओके, अगर आप वो डिपॉजिट दोगे और कुछ गड़बड़ आप नहीं करोगे, वो डिपॉजिट आपको दोबारा फिर से मिल जाएगा। ओके, सो होपफुली एडजस्टमेंट नंबर 3 आपको समझ में आ गया। एडजस्टमेंट नंबर 4, डेप्रीशिएट बिल्डिंग। अच्छा, वेरी वेरी सिंपल। बिल्डिंग कुटिया है इकडे मेरे पीछे, कितना डेप्रीशिएट करना है, 5%। 88,000 का 5% कितना आता है, 4,400। आउटर कॉलम में कितना आता है, 83,600। ये है फर्स्ट इफेक्ट डेप्रीसिएशन का।
सेकेंड इफेक्ट, मैंने दिमाग लगाया, आपने भी दिमाग लगाया, यू यूज्ड योर माइंड, मेंटल कैलकुलेशन. सो वेयर इज माइंड? ऑफिस इज माइंड. ग्रेट माइंड्स वर्क इन ऑफिसेस. टू depreciation on building 4,400. Done. Then comes the very clever part, that if I do adjustment number 5, write off bad debt gadbad, because this, what is this, Steven sir has said कि RDD bad debt नीचे आना चाहिए. अनरिकॉर्डेड सेल्स होगा पहले करो, डिसऑनर्ड बिल होगा उसके ऊपर करो. तो पहले हमको कीपिंग दिस इन माइंड सॉल्व करना पड़ेगा एडजस्टमेंट नंबर 6, बिल रिसीवेबल. बिकॉज मेरा जो डेटर अभी है वो अभी गड़बड़ वाला डेटर है, उसको सुधारने के लिए पहले एडजस्टमेंट नंबर 6 करना पड़ेगा. व्हाट इज एडजस्टमेंट नंबर 6? बिल रिसीवेबल से माइनस करो. चलो रे, क्योंकि डिसऑनर हो गया, हमको मना किया, हमको पैसे नहीं दे रहे, माइनस. डिसऑनर्ड बिल रिसीवेबल जस्ट अबव माई हेड, आउटर कॉलम, ये हो गया माइनस, एडजस्टमेंट नंबर 6. सेकेंड इफेक्ट, अरे किधर पेज मत घुमाओ, ऊपर जाओ डेटर में और उधर ऐड करो. डिसऑनर्ड बिल रिसीवेबल, दिस पर्टिकुलर ना, डिसऑनर्ड बिल रिसीवेबल 4,000 एंड बिलो 51,500, वी विल बी डिस्कसिंग एज अ एंटायर चैप्टर दिस कॉन्सेप्ट. सर बिल रिसीवेबल क्या है, बिल पेएबल क्या है, ये ऑनर क्या है, ये डिसऑनर क्या है, ओके ये पूरा जर्नल में हम समझेंगे. बिकॉज यू हैव अ फुल फ्लेज्ड चैप्टर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक पूरा चैप्टर है आपको 8-10 मार्क का जो आपको आता है, जो बिल की पूरी कहानी आपको समझा देगा. अभी हम देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 5. व्हाट डज इट से? राइट ऑफ, ओके 2,000 फॉर बैड डेब्ट्स. मतलब 2,000 का बैड डेब्ट हो गया. दैट्स बैड न्यूज. बैड बोलेगा तो बैड ही न्यूज होगा. व्हाट इज बैड डेब्ट? अरे वो कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है. अच्छा, तो इसके लिए 2,000 माइनस करने का, हाँ क्योंकि कस्टमर के पीछे हम नहीं भाग सकते हैं, हमको हमारा बिजनेस कंटिन्यू करना है. ये धंधे में होता है, ये बिजनेस में होता है, कोई भी व्यापार में, कोई भी कंपनी में, छोटी दुकान बड़ी दुकान के अंदर नुकसान होता है. तो आप माइनस कर लो. अच्छा, तो मैं डेटर से ये 2,000 माइनस करता हूँ, तो ये डेटर ऊपर है और हम उसके अंदर हमारा ध्यान रख के माइनस कर रहे हैं. एडिशनल बैड डेट, सम प्रोफेसर से फर्दर बैड डेट, नो प्रॉब्लम. 2,000, तो बिलो दैट 49,500, ये तुम्हारा क्या है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ डेटर्स. नाउ 2,000 को सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे करना है? सेकेंड इफेक्ट करने का भाई, क्योंकि ये को फॉर्मूला दिखता है आपको, BANO, इसके अंदर टुडे B फॉर बैड डेट नहीं था, O फॉर ओल्ड RDD नहीं था. नहीं था तो नहीं था. अभी जो आपने किया वो एडिशनल बैड डेट है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में है, तो आई हैव रिटन इन एडिशनल बैड डेट. नाउ बस खत्म हो गया? नहीं, पढ़ो आगे. एंड मेंटेन RDD. कौन सा RDD? अरे मेंटेन, अभी आप नया क्रिएट करोगे. 3% ऑन डेटर्स. क्या इसका डाउट है? DD दूरदर्शन नहीं, डाउटफुल डेट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट. अ बिजनेसमैन, because he has an experience of many years, okay, वो ये समझता है मेरे सारे कस्टमर्स में से 1-2 लोग नालायक निकलेंगे, वो मेरा पैसा नहीं देगी, मैं उनके पीछे भाग नहीं सकता. मैं RDD क्रिएट करता हूँ, एक रिजर्व क्रिएट करता हूँ. ओके, अगर मेरे को 2% का डाउट है 2% का रिजर्व, 5% का डाउट है 5% का रिजर्व. ये प्रॉब्लम में 3% का डाउट है. डाउट किस पे है? डेटर पे. बट कौन सा डेटर? डेटर में तो कितने नंबर है? लेटेस्ट डेटर. अच्छा, लेटेस्ट डेटर इज 49,500, उस पे डाउट है. यस, लेटेस्ट पे. न्यू RDD 3%. हाउ मच इज दैट? 1,485. 3% you have to calculate. 3/100. Outer column 48,015. सेकेंड इफेक्ट ऑफ न्यू RDD, क्योंकि वो जो बर्नो का फॉर्मूला है ना, उसका गठबंधन डेटर के साथ है, उसका कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन डेटर के साथ. डेटर में जैसे ही आप बैड डेट लिखते हो वहाँ पे लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे न्यू RDD लिखते हो वहाँ पे लिखना पड़ता है. सो न्यू RDD 1,485. टोटल दोनों को ऐड करो 3,485. सो आई होप ये पर्टिकुलर
प्रॉब्लम में ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट जिसका सीक्वेंस चेंज किया हमने, क्योंकि हमको करना पड़ा, वरना हमारा बुद्धू कट जाता. ओके, जस्ट ट्राइंग टू से हमारा मार्क्स डेफिनेटली कट जाता. सो आफ्टर डूइंग दिस what do you do? Nothing else. पूरा क्वेश्चन कवर अप कर लिया. We have done the trial balance, we have done the adjustments, we have done the adjustments in the proper order. मैंने आपको गुडविल, कॉपीराइट, फ्री का क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मोटिव पावर में ये इलेक्ट्रिसिटी, ये पावर डिपॉजिट का चक्कर क्या होता है, आई डिड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू. अबाउ सब परचेस इनर कॉलम में, हाँ तो परचेस रिटर्न नहीं आया तो परचेस को बाहर डाल. सेल्स इनर कॉलम में, तो सेल्स रिटर्न नहीं आया, सेल्स को बाहर डाल. अब टोटल करना स्टार्ट कर. तो लेट्स फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट. द डेबिट टोटल इन येलो इज 92,350. क्रेडिट इज हैवी हियर, मेरे कंधे पे 208,200. 208,200 व्हेन यू सबट्रैक्ट यू गेट ग्रॉस प्रॉफिट 1,15,850. फैक्ट्री का मुनाफा. ओके, सुचेता, गायत्री, ये घर मत लेके जाना. ओके, दे विल बी वेरी हैप्पी. 1 लाख का प्रॉफिट हो गया. नहीं नहीं नहीं, इसको उठा के ऑफिस में लेके जाओ. चलो भाई ऑफिस में लेके जाते. ऊपर 1,15,850. डेबिट का टोटल, क्योंकि नॉर्मली डेबिट का टोटल कम रहता है, 21,185. क्रेडिट इज हैवी, 1,17,550. नेट प्रॉफिट कितना है माइनस करने के बाद, 97,365. नेट प्रॉफिट इज लास्ट प्रॉफिट, LAST, लास्ट प्रॉफिट. तो ये देख के सुचेता एंड गायत्री डेफिनेटली हैप्पी होंगे, बिकॉज दे विल से ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये हमारे बीच में हमारे नाम में बटेगा. बट कितना बटेगा, अरे वो तो पहले ही हमने सम के फर्स्ट लाइन में डिसाइड किया था. प्रॉफिट हो या लॉस, 3:2, 3/5, 2/5. तो अभी आपका टाइम है गणित करने का. 97,365 का 3/5 एंड 97,3 का 2/5. तो इट्स नॉट वेरी चुटकी बजा के कैलकुलेशन. देर इज अ डिटेल्ड कटिंग प्रोसीजर दैट यू हैव टू डू, एंड व्हेन यू डू दैट डेसिमल नहीं आएगा. 58,419, 38,946 डेसिमल नहीं आएगा. वी हैव द प्रीवियस आई थिंक सो 2-3 लेक्चर से तो डेसिमल आ रहा था, बट नॉट हियर. यहाँ पे आपका वर्कआउट हो जाएगा. ये दोनों प्रॉफिट को यहाँ से उठाओ और उनके अकाउंट में, पार्टनर्स के अकाउंट में लेकर जाओ, क्रेडिट साइड, क्योंकि इट वॉज टू नाउ बाय. 58,419 एंड 38,946. डेबिट में देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, तो क्रेडिट इज हैवी. सुचेता का टोटल 133,419 एंड डिफरेंस भी उतना ही है क्योंकि देयर इज नथिंग टू माइनस. गायत्री का टोटल 78,946 और डिफरेंस भी उतना ही है. क्या है ये डिफरेंस, ये कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है. ओके, कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल किधर जाएगा, बैलेंस शीट में. ये बैलेंस शीट है हमारे पीछे. ओके, तो लाइबिलिटी साइड में दोनों का, सुचेता, गायत्री, कैपिटल ऐड होके आउटर कॉलम में 2,12,365. वंस ग्रॉस प्रॉफिट स्टार्ट्स, आफ्टर दैट देर इज नो डेबिट क्रेडिट का लॉजिक, देर इज मैथमेटिक्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही चलता है. आफ्टर यू डू दैट द टोटल ऑफ द लाइबिलिटी, जब कुछ लोग हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु जी प्लीज़ लेके आ जाओ दोनों साइड का टोटल. ओके, 2,80,815 इस तरफ, 2,80,815. तो आप इस तरफ और उस तरफ एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों साइड पे लिख लेना. आई होप ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर द कॉन्सेप्ट्स दैट वर थॉट टू यू, गुडविल का कॉन्सेप्ट, कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट, मीटर, डिपॉजिट ऑफ मीटर का कॉन्सेप्ट, ये सब आपको समझ में आ गया है. एंड इफ़ इट हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय यू, अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. यूट्यूब इज सच, इट्स सच अ प्लेटफॉर्म ना कि अगर कोई भी वीडियो पे किसी भी तरह का इंटरेक्शन, बातचीत नहीं होता है तो फिर यूट्यूब उस वीडियो को
दूसरे किसी को रेकमेंड नहीं करता. तो जस्ट लाइक यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड आई डियरली होप इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा होता है. बट देयर इज समबडी एल्स, ओके, इस प्रांत में, इस स्टेट में, ओके, जो ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पे कॉलेज का, कोचिंग क्लास का तकलीफ हो सकता है. दीज लेक्चर्स विल हेल्प. बट देन दे डोंट नो, उनको पता ही नहीं है कि ये लेक्चर है. स्टीवन सर मेक्स इट ईजी पे अकाउंटेंसी के लेक्चर्स होते हैं. सो व्हेन यू पुट दैट कमेंट, व्हेन यू पुट दैट लाइक, ओके, ऑटोमेटिकली यूट्यूब को समझ में आता है अच्छा यहाँ पे कुछ चल रहा है, एक्टिविटी है, and it accordingly recommends to somebody else. It keeps the channel alive and it spreads the good news of the channel to others also. If you have doubts, comment box का उपयोग डाउट के लिए कर लेना. Share the videos with as many as possible through WhatsApp, Facebook, Instagram पे लिंक डाल सकते हो तो प्लीज़ डाल देना. आपके WhatsApp के स्टोरी पर अगर आप एक लेक्चर का लिंक डाल सकते हो, it reaches to so many. I know you know somebody and somebody knows some many buddies, okay, so automatically the news can click, it's only click, we don't have to be paying money to anyone. Click and this channel will grow and it will benefit many of you, which I really hope, which is the agenda at Steven Sir Makes It Easy. Take care of yourself, take care of your seniors and juniors. अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखना, ओके, उनका होना आपके आसपास बहुत बहुत ज़रूरी है. ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. टिल द टाइम वी मीट अगेन. बाय बाय.